All right, some big breaking news coming in from JNU University. We are looking at a pot boiler here. Scuffle breaking out between students of the right and the left wing. Students allegedly fight over non-veg food being served in campus. This has spilled out, in fact, snowballed to a massive violent protest that we hear that's currently taking place in JNU. Even as we speak, the AISA students wing of the CPIML Liberation allege that ABVP has stopped hostel residents from eating non-vegetarian food and also assaulted the mess the secretary who is responsible for handling the mess there was assaulted by ABVP workers. ABVP has alleged, on the other hand, that they were holding a Havan Puja on the occasion of Ram Navami and left-wingers created ruckus and obstructed their puja. The university's vice-chancellor has said, and ever since has tried to clarify, saying that there is no restrictions on people's personal food choices and the right to follow religious practices is widely followed and should be followed in JNU. These are visuals coming in. Here are visuals coming in. In fact, India Today, the only channel on ground bringing us the latest coming in from JNU. We're looking at quite a law and order situation that's happening inside JNU. Pankaj Jain bringing us a little more on that. Pankaj, यहाँ पर JNU में इतनी मारतोड़ हो रही है. We hear that some of them have been injured as well. We are getting visuals and shots there where the protests have turned violent. What was the reason of the protest? We understand that some of the ABVP workers imposed their personal views, asking many of them not to eat non-vegetarian, while the counterclaim is that they were trying to carry out a puja for Ram Navami and left-wingers stopped and obstructed their puja. What's the fact and the truth on ground, and how is the security contained? पंकज सुन सकते हो? See, this is clash between two groups, right wing and left wing. Right now, protest is going on in front of JNU main gate. यहाँ पर जो protesters हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं. रोहित, यहाँ पर क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या नारेबाजी है? भाई साहब, ये हमारा नाराबाजी है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए. जिहादी हमला जो लेफ्ट का द्वारा हमला हुआ है 5 जनवरी वाला, वो ना हो. हमें प्रोटेक्शन दिया जाए. पुलिस जो है, ऐसे लेफ्ट के लोग JNU के अलग अलग कोने में अंधेरे में छिपके बैठे हैं, जिसके कारण से हमें आना पड़ा है और ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना पड़ा है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि हम इजीली विथ एश्योरेंस अपने अपने रूम में रह सके, पढ़ाई कर सके. लेकिन मारपीट हुई, क्या ये मारपीट होनी चाहिए थी? इस तरह से घायल स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है. बिल्कुल, हमारे 7 कार्यकर्ता घायल हैं. कावेरी हॉस्टल पे अटैक क्यों किया गया? जब आराम से पूजा हो गया बिना किसी रोक टोक के, हम लोगों ने कोई दिक्कत नहीं किया. जब पूजा हो गया तो अटैक ये क्यों हुआ? हमारा सवाल ये है, हमें क्यों हर बार टारगेट किया जाता है? इस वक्त फैक्ट ये है कि दिल्ली पुलिस भीतर मौजूद थी. दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर आज दोपहर 3:30 बजे रामनवमी की एक पूजा का आयोजन किया गया था और कावेरी हॉस्टल जहाँ पर आज भोजन तैयार होना था, खाना तैयार होना था, उसे लेकर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है. और उसके बाद आप तस्वीरें इस वक्त देखिए, ये वो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं जो कि राइट विंग के हैं. लेफ्ट विंग के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहले ही ये एलिगेशन लगा चुके हैं कि यहाँ पर जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की. तो ये जो पूरा फैक्ट है वो कहीं ना कहीं नॉनवेज को लेकर है और रामनवमी की पूजा को लेकर है. और इस बीच जब दोनों कम्युनिटी के बीच में बहस हुई, झगड़ा हुआ, तो फिर मारपीट भी शुरू हो गई. तो पिछले 3 घंटे में JNU में बहुत कुछ बवाल हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पे पहुँचना पड़ा. और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर कई बार एम्बुलेंस जो है वो JNU के भीतर गई है, बाहर गई है. नज़दीकी जो अस्पताल हैं, सफदरजंग और एम्स, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो घायल हुए हैं उन्हें पहुँचाया गया है. लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी तरह की बहस या मारपीट नहीं देखने मिल रही, बल्कि प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है राइट विंग की तरफ से. Pankaj, where is the police? Where is the security? And where are the officials of the JNU University? Is the administration taking note of this? Why don't we see anyone from the administration stopping these protests from boiling out? We understand that one of the mess secretary personnel has also been assaulted for allegedly serving meat inside the hostel mess. Is he okay? We see visuals of ambulance coming. We're a little worried and concerned of the safety of those students currently in JNU.
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेजर कंसर्न जो है वो स्टूडेंट की सेफ्टी का है। ये जो आप गेट देख रही हैं, ये गेट अब से आधे घंटे पहले यहाँ पे ओपन था ऑल स्टूडेंट्स के लिए, जो अंदर लोग रहते हैं उनके लिए, लेकिन ये जब से यहाँ पर स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं राइट विंग के, इसके बाद ये गेट लगा दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भीतर मौजूद है। यहाँ से करीब 500 मीटर्स की दूरी पर एडमिनिस्ट्रेशन है। वहाँ पर जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस भी जो कावेरी हॉस्टल है जहाँ पे ये पूरा झगड़ा हुआ वहाँ पर पहुँची थी। 3 दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भीतर गई थी और उन्होंने मौके का जायजा लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है एक बयान जारी करके कि फिलहाल जेएनयू के भीतर शांति है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये तब हुआ सब कुछ जब विवाद हो चुका था, झगड़ा हो चुका था, मारपीट हो चुकी थी। लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं जेएनयू में हम जहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पोस्टर्स तैयार कर लिए गए हैं लेफ्ट विंग के खिलाफ। लेफ्ट विंग का कहना है कि मारपीट की है, नॉनवेज खाने से मना किया है। वहीं यहाँ पर राइट विंग का कहना है, एबीवीपी का कहना है कि उनके स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब अगला एक्शन क्या लिया जाएगा। पुलिस की तरफ से अभी और भी स्टेटमेंट आने बाकी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए क्या किया गया है और वो स्टूडेंट्स जो इस पूरे इंसिडेंट में घायल हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए और उनके इलाज के लिए क्या किया जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स घायल हुए ये प्रोटेस्ट में और कहाँ लेके गए उनको? Where have they been rushed to and is the injury really bad? What's the situation that you see? We see protests that are taking place, but is this protest allowed? Why is the police not, stopping these students from carrying out protests? Because it's only going to flame emotions and passions at this point and could possibly very well lead to clashes in the days to come. We're looking at late in the night, students are sitting in protest. Are they allowed to protest or are they doing this in violation of the norms? देखिए फैक्ट देखिए ये प्रोटेस्ट के पहले जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और वो हो चुका है। उसके बाद पुलिस भीतर पहुंची है। सबसे अहम था कि जो कावेरी हॉस्टल है वहां पर आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग आज हुई, यहाँ पर राइट विंग के भी लोग पहुंचे, लेफ्ट विंग के लोग जिन्होंने मीटिंग बुलाई वो भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद थे और इसके बाद ही ये झड़प शुरू हुई। वो नहीं शुरू होनी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए थी, लेकिन वो मीटिंग वहाँ पे हुई और उसके बाद ही जो स्टूडेंट हैं वो घायल हुए, मारपीट उनके बीच में हुई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन या जेएनयू सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई इन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या अभी तक नहीं बताई, कितने स्टूडेंट्स अभी तक इस पूरे इंसिडेंट में घायल हुए हैं। तीसरा कि जो स्टूडेंट्स हैं सबसे नज़दीक यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ इमरजेंसी में उन्हें पहुँचाया गया है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो सिचुएशन ये है जेएनयू के भीतर इस वक्त कि ज़बरदस्त यहाँ पे स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो राइट विंग है उसकी भरपूर कोशिश है कि वो लेफ्ट विंग जो है उसको घेर सके। Ji, the protests and the clashes between the right wing and the left wing in JNU has been common, but the moment it turns violent, it becomes a real matter of concern because this fallout could happen even on the streets of Delhi extensively, and we're a little worried about the security of many of those students who are currently inside protesting. A few of them have rushed to hospitals to ensure that their friends are treated. Many of them have been injured. This is not what we want to see in a university as reputed as JNU, but issues like this are quite common in JNU. Give us a little bit of background here, Pankaj, कि वहाँ पर हॉस्टल के मेस में नॉनवेज सर्व किया जाता था और इन्होंने मना क्यों किया? एबीवीपी ने मना क्यों किया और क्या ये सच है कि हॉस्टल मेस की सिक्योरिटी को उन्होंने मारा नॉनवेज सर्व करने के लिए? देखिए फैक्ट ये है कि आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास रामनवमी है, तो वहाँ पर राइट विंग एबीवीपी की तरफ से पूजा रखी गई। इसके अलावा रोजाना ये सुनने में आ रहा है या फिर जो तमाम स्टूडेंट विंग हैं उनका ये कहना है कि नॉनवेज वहाँ पर जो हॉस्टल के मेस हैं, कैंटीन है, वहाँ पर बनाया जाता था। आज संडे है, संडे के दिन भी ये बनता था, लेकिन जब पूजा शुरू हुई जो कि कावेरी
हॉस्टल के ठीक बाहर पूजा होनी थी। कावेरी हॉस्टल के भीतर ही एक कैंटीन है, मेस है, वहाँ पर भी खाना बनना था। वहाँ पर जब नॉनवेज लेके पहुँचे, ये एलिगेशंस हैं, वहाँ पर जब नॉनवेज लेकर पहुँचे तो राइट विंग ने इसके अगेंस्ट वहाँ पर नारेबाजी की और वहाँ पर जो भी विजुअल्स सामने आए हैं वो लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच झड़प के हैं। तो ये पूरी स्थिति थी। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि जेएनयू में नॉनवेज बनता था या सर्व भी किया जाता था। और साथ ही साथ आज के दिन जब ये पूजा हुई तो ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे ज़बरदस्त ये हंगामा हुआ, फाइट हुई, एक दूसरे को मारा पीटा गया। अब सवाल ये है इसमें कि जब 3 बजे से ही इस पूरे विवाद की शुरुआत हो गई थी तो पुलिस ने एक्शन कब लिया? क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज की है? क्या इस मामले में उन लोगों की पड़ताल करने की कोशिश की है जो मारपीट कर रहे थे, जिन लोगों ने ये मीटिंग बुलाई, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया? तो यहाँ पर अब देखना होगा कि पुलिस का अगला एक्शन क्या होता है और पुलिस के सामने ही ये फिलहाल सारे सवाल हैं। जी, आप पंकज कोई स्टूडेंट से बात कीजिए। वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियल सेंटिमेंट इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सम क्लैरिटी टू आवर व्यूअर्स, द विजुअल्स दैट वी आर सीइंग हियर आर अ bunch of ABVP students who are sitting there in dharna and protesting. We aren't able to catch any of the left wingers. In fact, we understand that some of them from the AISA, the students wing of the CPIML Liberation Front, they are not present right now as part of the protest. Those who are protesting are ABVP leaning students who are right now demanding that justice be brought because their puja was disrupted and therefore they're now demanding that non-veg should not be served. They say that if we are not allowed to carry out our puja comfortably, then even non-veg must not be served in the college campus or in the college mess. And we hear, but while through those clashes, some of the students were injured, one of the security of the mess was assaulted, all of them have been rushed to hospitals. This protest indeed has turned violent. But Pankaj, कोई वो स्टूडेंट बात करना चाहता है, प्लीज उनको माइक दीजिए, हम सुनना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है। नक्सली गुंडो कैंपस छोड़ो, नक्सली गुंडो कैंपस छोड़ो। What is your name? मेरा नाम उमेश चंद्र, my name is उमेश चंद्र अजमेरा, ABVP secretary. उमेश, what happened inside? नक्सली गुंडो कैंपस छोड़ो। लेफ्ट विंग ने ये एलिगेशन लगाए हैं प्रभु श्री राम को अपमान नहीं सहेंगे। See, today is Ram Navami festival. So we common students of JNU organized Ram Navami puja and havan at the Kaveri hostel. As a Hindu, we went to Kaveri hostel to celebrate our festival, Ram Navami. Muslim students have celebrated their iftar party in the same hostel in the mess. We both at the same time iftar party was going on, and at the same time our puja, Ram Navami puja and havan was going same parallelly. There is no clash. We harmoniously, peacefully we are organizing the festivals are going on. This communist, this leftist came to Kaveri only with one person, one agenda, only one strategy to attack Hindu festival. How they couldn't tolerate how Hindu festivals are being organized in JNU, how Ram Navami is being organized in Kaveri. But left wing is alleging that you right wing students were against the non-veg food. No, we are never against non-veg food. It's everyone's freedom. They can eat whatever they want. ABVP never stood anywhere. We always stood for freedom of food. There is no this is false propaganda. They couldn't stop our festivals, so they just created new propaganda that students are against non-veg food. No, the hostel committees are there. They will ensure which food has to be served to the students. We have no role in the food non-veg or veg. Anyone has their choice. Now Navratri is going on. Ram Navami is going on, Iftar is going on, so Hindu and Muslim students are themselves are avoiding non-veg. It's not, no one forced anyone that you shouldn't eat non-veg. Yes, it's also about the safety of the students. What happened when Delhi police reached inside? Did they stop the violence? What happened? See, we are peacefully organizing our festival. We are successfully conducted our puja, and they couldn't tolerate this. So these leftists and communists mobilized in hundreds of numbers and came to attack us.
this police came very late and they couldn't stop this leftist. These leftists they attacked our students. Nearly 10 to 15 students have severely injured and they have been sent to AIMS, Safdarjung Hospital. So this is not just one incident. This is a continuous attack on Hindu festivals. If you look at recently Shivaratri, they brought a parcha against Shivaratri festival, saying that Hindu songs are being played at the Mahimandi hostel during Shivaratri. They couldn't allowed a holy festival to be celebrated in JNU. JNU is known for holy festival, but this time they didn't allow holy festival to be organized in the Jhelum lawn. So this is the continuous attack on Hindu festivals. Today it is just... It all happened around 3 PM in the afternoon. What are the communication from the JNU administration? Didn't they come to stop this all fight? Yes, JNU security were being, as the program should be starting at 3:30. These leftists have mobilized at the hostel and blocked the hostel. So JNU security has mobilized, stopped these leftist gundas from stopping us. So as the security provided, our common students could able to enter the hostel and we could able to perform our Havan and Puja. सर रामनवमी का अवसर चल रहा था. कॉमन स्टूडेंट्स ने मिलकर बेसिकली कॉमन स्टूडेंट्स ने रामनवमी ऑर्गेनाइज कराया था और ये लेफ्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रामनवमी का वो करा जाए. आपको पता होगा एक महीने से रमजान भी चल रहा है यहाँ पे, बट बहुत स्वार्थपूर्ण तरीके से हमारे भाइयों ने बनाया, उसमें कोई समस्या नहीं है. देखिए, ये वामपंथी शुरू से ही ये अराजकता फैलाते हैं. हमारी यही मांग है कि इनके प्रति जो वाइस चांसलर जो हमारी नई आई हैं उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और हमारे छात्र जो घायल हुए हैं, हमारे यहाँ महिलाएं जो घायल हुई हैं, उनके खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं. कदम से कदम मिलाकर चलने का काम हम करेंगे. मांगे यही है कि उनके प्रति हमारी JNU administration should take strong stand against this leftist who are attacking Hindu festivals. We hear what the students are saying. We see that the ABVP seem very angry and upset over some of the left-wingers allegedly trying to stop their puja, which is awful. If they were conducting a puja on Ram Navami, what's the harm in it? If it's true, these allegations are true that the left-wingers tried to disrupt it, then they must be reprimanded. The college administration must pull up those students. But if it's also true that the ABVP assaulted someone at the mess and refused, or rather enforced their views, asking for non-veg not to be served in the mess, then that also must be looked into. But give us an understanding, what exactly is the stance of the JNU administration at the moment? What has the college said? देखिए, हमारे साथ और स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं. क्या कुछ हुआ? राइट विंग कह रहा है कि वहाँ पे मारपीट हुई, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मारपीट हुई है, लेकिन कौन किया है ये सवाल है ना, क्योंकि अब वहाँ पे लोग गए, इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी हुई है, मारपीट हुई है, बहुत लोग घायल हुए हैं. कि कावेरी हॉस्टल के सामने क्या कुछ हुआ, कब और किसने बुलाया वहाँ पे सभी को? देखिए, मैं कावेरी हॉस्टल का ही रेसिडेंट हूँ और इवन मैं वहाँ पे हॉस्टल कमेटी का मेंबर भी हूँ. ठीक है, जो सारी चीज़ें मैं वहाँ मौजूद भी था. जैसा कि वो पूजा पाठ में कोई बाधा डालने की बात नहीं हुई थी. ठीक है, एक तरफ आपको रामनवमी का पूजा चल रहा था, दूसरी तरफ रमज़ान का सारा चीज़ चल रहा था. बात यहाँ आ जाती है कि नॉनवेज और वेज की बात होती है खाने की. तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा से रही है कि जिनको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाएं, जिनको नॉनवेज नहीं खाना है वो नॉनवेज ना खाएं. ठीक है, तो यहाँ वार्डन के द्वारा एक मैसेज कन्वे होता है कि आप लोग जो हैं कल मेस में वेज बनाया जाए. तो मैंने सर से यही कहा कि सर आप अथॉरिटी हैं तो आप रिटर्न वहाँ पे लिख कर दे दें, और अगर आप रिटर्न लिख कर नहीं दे सकते हैं तो आप खुद वहाँ पे शुड हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मेस काउंटर और आप बच्चों से खुद ही डील करें. ठीक है, ये रिटर्न वहाँ से नहीं मिलता हमें. तो एज़ यूजुअल जैसे होता है, कोई नोटिस नहीं आती. तो हम कितने बजे की बात है जब जो मेस है, कैंटीन है, वहाँ पर दोनों विंग के जो स्टूडेंट हैं वो पहुँचे? में जो खाने का सही समय होता है, कैंटीन में खाने का समय है 7:30.
7:30 से 9, साढ़े 9 बजे के बीच खाने का टाइम होता है। इन लोगों का प्रोग्राम लगभग 7:30 से पहले ही खत्म हो गया था। उसके बाद भी ये लोग आते हैं और वहाँ पत्थरबाजी करते हैं और ये लोग कहते हैं कि चिकन मतलब नॉन वेज नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। इसी के रिगार्डिंग ये लोग इस मामले को भड़काने का इशू करते हैं, फिर प्रोवोक करते हैं, थ्रेट करते हैं कि जो लोग भी चिकन खाएगा उनको मारा जाएगा या चिकन नहीं बनेगा। उसके बाद ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। उसके बाद कावेरी जो मेनली PH हॉस्टल है वहाँ के रेसिडेंट को ये लोग घुस के मारते हैं और धमकी देते हैं लगातार। दिल्ली पुलिस आई, एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों की कोई बात हुई वहाँ पर? वायलेंस जो हुआ उसको रोकने की कोशिश आई है। दिल्ली पुलिस आकर के बस मुख खड़ी बस खड़ी थी। वो पूछा गया था, दिल्ली पुलिस कहती है कि हम लोग दिल्ली पुलिस आई थी, हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पे वो दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम लोग देख रहे हैं और गाड़ी से कोई नहीं निकला। वहाँ पे कावेरी हॉस्टल के सामने बस मुख दर्शक बने हुए थे, देख रहे थे बस चुपचाप। देख सकते हैं यहाँ पे और दिल्ली पुलिस के सामने ही हो रही थी सारी चीज। दिल्ली पुलिस और JNU के एक गार्ड उसी तरह से खड़े थे, छात्र पीट रहे थे, पीटने वाले लोग पीट रहे थे, सब कुछ देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरा पक्ष ये भी है जो लेफ्ट विंग के सपोर्टर्स हैं उनमें से एक है जिनसे हम आपकी अभी बातचीत करा रहे थे। इन्होंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने बताया कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ, किस तरीके से जो मेस है वहाँ पर नॉनवेज बनाने को लेकर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। दूसरी तरफ जो राइट विंग है ABVP उनका कहना है कि नॉनवेज कोई मसला ही नहीं है। तो ये पूरा विवाद आज रामनवमी के दिन हुआ। एक तरफ पूजा थी, दूसरी तरफ खाना था और इस बीच ही दो जो विंग है राइट विंग और लेफ्ट विंग इनके बीच में बहस हुई और बहस के बाद ये पूरा जो मामला है ये झगड़े में बदल गया। You know, Pankaj, we're seeing stark differences in the versions coming in from the left-wingers and the right-wingers. Right-wingers saying that their puja was disrupted. Left-wingers saying that they never intervened. It was the left-winger, it was the right-wingers, the ABVP who tried to stop non-veg being served in the mess. That has now led to clashes. Today on Ram Navami, we're seeing large protests that's currently ensuing in JNU. JNU is, of course, not new to any kind of communal clashes between students. The left and the right wingers are often clashing, but this time it's taken a violent turn. Many students have been rushed to hospital. A few of them are currently being treated. We're going to see what the administration says and what kind of case will the police take up with these students at the earliest.